बच्चा एंड पार्टी वेलकम बैक। थोड़ी देर पहला बच्चा असी एरिया वैक्टर और इलैक्ट्रिक फ्लक्स बारे पढ़िया सी। हुण आपां नैक्सट जो पढ़न जा रहे हैं गॉस थ्योरम। इस नूं करन तो पहला जिन्हां ने मेरे इस चैनल नूं लाइक या सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी अपना फर्ज निभाउण, असीं अपना फर्ज निभा रहे हैं। ठीक है जी। सो की करांगे आपां हुण बच्चा जी की पढ़न जा रहे हैं आपां गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम वाले केस च की होएगा, देखो गॉस थ्योरम ने की कहना उस तो पहले जो आप जो पढ़े सी ना विच वेख लिया जाए। एरिया वैक्टर का मतलब की सी, एरिया वैक्टर मीनस कोई एरिया ओदे तो आउटवर्ड वाले पासे नूं कोई डायरेक्शन निकल के जानी उस एरिया दी उसनूं बोलदे एरिया वैक्टर। उस एरिया दा वैक्टर उस एरिया दी डायरेक्शन। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होया सी उस एरिया दे विचों दी किन्नियां नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास करदियां पईयां ने परपेंडिकुलरली या किसी भी तरीके नाल पास करदियां हुण परपेंडिकुलरली पास करनियां तां मैक्सिमम बन गया। सो उस एरिया च नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का पास होना वो कि सानूं दिंदा है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। सो अगे आपां पढ़न जा रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम दे विचों की होएगा, गॉस थ्योरम ने की कह सकते हैं ਜਿਹੜਾ गॉस थ्योरम ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਗॉस थ्योरम ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ Q upon epsilon naught। ਆ ਚੀਜ਼ गॉस थ्योरम ने बोली है। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਆ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ। ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਲ ਸ਼ੇਪ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਇਆ। ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਆ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸਿਸ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ, ਇਸ ਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ds ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ q ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ r ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆ q ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਆਏਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ E ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ r ਦੀ ਹੈ। ਸੋ r ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤਾਂ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਨਾਲ r ਕੈਪ ਮੀਨਸ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਫੇਸ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣੀ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ds ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ n ਕੈਪ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ
उस चार्ज ने जो इस सरफेस के ऊपर इलैक्ट्रिक फ्लक्स लगाई, इस पूरे सरफेस के ऊपर, जो गॉसियन सरफेस के ऊपर, जो कभी भी ਅਸੀਂ फ्लक्स वाले क्वेश्चंस करांगे बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गॉसियन सरफेस ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ, Q upon epsilon naught। ਇਹ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। गॉस थ्योरम ने जो बोलिया ये सच बोलिया कि झूठ बोलिया, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। तो जो इन्नी गल कह रहे हैं ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ यार कि वाकई जो उसने गल कही है सही है कि नहीं सही। ठीक है, सो ये गॉस थ्योरम ने वर्डिंग बोले ये, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ E डेल्टा S। डेल्टा S मतलब थोड़ा सरफेस का फ्लक्स भी थोड़ी, ठीक है। ते जेकर पूरी फ्लक्स की गल करा तो वो की होगी, ये पूरे सरफेस की गल करनी पैनी सन, ठीक है ना, पूरे सरफेस की गल करनी पैनी क्योंकि फ्लक्स पूरी लानी, क्योंकि सारे पासे तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर हो जा रही ने, ठीक है। ख्याल ये चीज का होना चाहिए बेटा कि जेड़ा चार्ज की गल की जा रही है वो चार्ज जेड़ा आ उस क्लोज्ड सरफेस दे विच होवेगा, ओदी फ्लक्स की गल हो रही है। कोई इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहरों दी आउंदियां होण, इस सरफेस दे विचों दी पास होण ते फिर वापस बाहर निकल जाण, उस फ्लक्स नूं काउंट नहीं कर रहा गॉस थ्योरम। वो कह रहा है कि उस सरफेस दे अंदर जिहड़ा चार्ज होएगा उस दी फ्लक्स दी गल हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे ते इदां दे क्वेश्चन सानूं भुलेखे पाउणे आ। सो आपां ओहदे विच इक्को चीज दा ध्यान रखना हो कि उस क्लोज सरफेस दे विच चार्ज कितना है, उस चार्ज ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ मतलब सारे सरफेस की मैं गल करता पाया वा, E डेल्टा S डॉट ही लगूगा क्योंकि आप पिछले इलैक्ट्रिक फ्लक्स से चीज पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गॉस थ्योरम सी, इसनूं आपां प्रूव करना है। गॉस थ्योरम ये सी, सानूं पता A इस दे बराबर है, इत्थे क्लोज सरफेस की गल की जा रही है। सो मैं सारा सरफेस नूं इंक्लूड करना पैना, इसदा मतलब मैनूं भी करना पऊगा, इंटीग्रेट करना पैना पूरे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। थोड़ी चीज नूं सारे सरफेस के ऊपर फैलाउणा ते इंटीग्रेट कर दो, सारी सरफेस तो सारे सरफेस जो सरफेस दे विच है उस तो छोटा जिहा पार्ट लगा डिफरेंशिएट कर दो। सो आ चीज नूं आपां हुण ये जो चीज निकल के आई इसनूं आपां प्रूव करना है। और एक चीज का होर ख्याल रखो बेटा कि फ्लक्स जिहड़ी ओ इहदे नाल इत्थे एप्सिलॉन नॉट है। आपां पुराने वाले केस डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दे विच वो चीज़ां पढ़ चुके हैं कि K किहदे बराबर हुंदा, F नॉट अपॉन F E नॉट अपॉन E एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये केस आ चीज़ां किद्दां बणीआं ये सानूं दस्सण दी लोड़ है। फिर भी आपां देख लेंगे कि छोटा जिहा केस वो की सी कि F सानूं पता किहदे बराबर हुंदा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो आ चीज ते आ चीज दोवें आपस किवें ने, इनवर्सली ने। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे जिहड़ा फोर्स आएगा, फोर्स है ये एप्सिलॉन, इत्थे भी नॉट आऊगा, इत्थे भी नॉट आऊगा, ये वैक्यूम की गल की जा रही। सो आ वैक्यूम वैक्यूम ते आ वैक्यूम, मीडियम मीडियम ते आ मीडियम। सो ये चीज देखी जाए कि वो चार्ज आ उस दे आले वाले मीडियम किहड़ा है। अगर वैक्यूम है तो ठीक है जी एप्सिलॉन लगा रहूगा, अगर उसके आले वाले कोई मीडियम है मीनस जिहड़ा मैं गॉसियन सरफेस लै रहा वा वो किसी मीडियम दे विच ही है तो फिर उत्थे नाल की लग जूगा, इत्थे K लग जूगा। मीनस उस वाले केस की बन जूगी फ्लक्स आ
ठीक है, ये चीज सैपरेट इशू है बेटा, ये आप ध्यान रखना। अब आप फिलहाल इसको प्रूव कर लगे ये की कह रहे हो। इथों देखा जाए मैं इस तो आ चीज सारे को पहला सी सानू पता इलैक्ट्रिक फ्लक्स की, आप इनू लेके जे तुर रहे हो। हुण की कह रहा जे थोड़ी फ्लक्स की गल की जाए तो थोड़ी फ्लक्स की है कि मीनस आ चार्ज है, आ इन्ना एरिया लिया, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रही है, इस सरफेस का जो वैक्टर है वो भी इसे पासे नु एन कैप। तो देखा जाए की बनता गया ई वैक्टर डॉट डेल्टा एस वैक्टर की बनूगा, छोटा सरफेस थोड़ी फ्लक्स, ई नाल ई केड़े पासे नु जेड़े पासे नु आर जा रहा है, तो आर दे बदन दे नाल ई वध रहा ना, सो आर वैक्टर आर कैप हो गया, ई वैक्टर क्या आ गया मैग्नीट्यूड नाल ओदी डायरेक्शन डॉट ds मैग्नीट्यूड नाल ओदी डायरेक्शन, इस दी डायरेक्शन n कैप इसे पासे नु है, ई ds विच की है दोनों दोनों एक ही पासे नु है, दोनों के विचकार कोई एंगल नहीं है, सो की आएगा ई ds cos 0 डिग्री। इन्हां दोहां दा मैग्नीट्यूड की हुंदा, सानू पता यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ 1 सो 1 1 की आ गया, आ चीज आप पहला लिखनी सी बेटा, cos थीटा बाद लिखना, cos 0 डिग्री के नाल आ गया, तो साडे कोल की बन गया जी वैल्यू की होगी 1, सो की आ गया ई ds, ई दी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ऑन r स्क्वायर, नाल आ गया ds किस दे बराबर d फाई के, थोड़ा सरफेस वास्ते होगी फ्लक्स इन्नी। और इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पासे नु लगदी पई है पूरे सरफेस दे ऊपर, सो टोटल फ्लक्स की होएगी इस गॉसियन सरफेस दी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ देखिए फ्लक्स पर की आएगी बेटा पूरी पूरी फ्लक्स वो की आएगी सारी इंटीग्रेट करांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर नु आ गया, q भी बाहर आ गया, r स्क्वायर भी बाहर नु आ गया, विच की रह गया पूरा सरफेस ds, पूरे सरफेस का की आ गया। फिर हुन स्फेरिकल सरफेस या इस दा सरफेस एरिया फिर की होएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, चलो जी कैंसिल आउट, जो चीज बच दी है मगर जल्दी ना बोल दो की है जी, प्रूफ होगी साडे कोल की गॉस थ्योरम। याद रखना जे ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ k ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ याद रखनी बेटा, जल्दी नाल इस दा तुसी स्क्रीनशॉट लाओ, इस तो बाद अगे आपां इहदी वेरीफिकेशन करनी है और नाल ही किवें इक्विवेलेंस ला नूं आपां ड्राइव कर सकते हैं गॉस थ्योरम तो आपां उसको भी करना है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट है बच्चा जी अपने कोल गॉस थ्योरम भी हो गया, फ्लक्स एरिया वेक्टर भी हो चुका है, हुण आपां करनी है इस दी वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन मींस गॉस थ्योरम दी वेरीफिकेशन। वेरीफिकेशन का मतलब की जो गॉस थ्योरम ने किया वो तो असीं प्रूव करता, हुण उसकी वेरीफिकेशन करनी है। मींस जो उन्हें एक कंडीशन लगाई है साडे कोल, वो कंडीशन की सी, वो कंडीशन बच्चा जी वो इहदे विच की बोल रहा, वो कंडीशन कह रहा सी कि जो उस क्लोज्ड सरफेस दे विच चार्ज पिया होएगा उस दी फ्लक्स काउंट डाउन होएगी। बस बाहरों कोई इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस सरफेस दे विचों दी आउंदियां होण ते आके निकल जाण बाहर नूं दोबारा, ते वो वाली चीज दी जिहड़ी फ्लक्स आ वो नहीं काउंट होएगी। गल समझ लगी? सो आपां देखना कि जो वो इन्नी गल बोलदा पिया वाकई वो सही है कि नहीं सही, वो आपां कर लगे हां। ठीक है जी, सो ये वेरीफिकेशन है। देखो आपां कोई भी साडे कोल साडी मर्जी है, आपां कैसा भी सरफेस लेके चलते पे हैं। इस वक्त आपां सिलेंड्रिकल लेके चलते हैं क्योंकि हर एक पासे की शेप अलग अलग होगी, सानू बेटा समझने में सौख रहेगी। उस तो बाद आपां स्फेरिकल दे नाल भी समझ लांगे, स्फेरिकल दे नाल बहुत ईजी चीज हो जानी है। इस सिलेंड्रिकल शेप दे नाल लेके देखदे क्योंकि सिलेंड्रिकल भी क्लोज लूप दे विच ही है, ते उस वाले केस से समझ के देखते हैं कि क्योंकि उहदे विच एंगल वगैरह सारे कंसीडर होणगे, तां करके आपां किहड़ी शेप लेके चलते पे हैं सिलेंड्रिकल। देखो किदा कह रहा है, वो कह रहा है एक सिलेंड्रिकल शेप का आपां की ले लिया क्लोज सरफेस, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं
ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਐਂਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ। जो पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले पासे की जाती है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, याद रखनी चीजा है। सो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले पासे जा रही ने, तो आप जिन्ने भी सरफेसिस ने सारे दे ऊपर पहला चेक भी कर दिता जाए इन्हां दे एरियाज वैक्टर की ने, ठीक है। और हर एक चीज वास्ते जो आप एरिया वैक्टर पढ़िया सी, उहदे विच एक चीज का ध्यान रखिया सी, की किया गया सी कि उस क्लोज्ड लूप इहदे विच सिंपल आप ये चीज पढ़ी सी कि आउटवर्ड वैक्टर मतलब उस एरिया का बाहर वाले पासे का वैक्टर। सो ये देखा जाए अंदर वाली काउंट करना, बाहर वाला काउंट करना बच्चा जी। सो ये वाला एक सरफेस जो बनया ये उरले पासे वाला, एक बनया इधर ना ये परले पासे वाला, एक सरफेस बनया है कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। जिवें आ ही है साडे कोल एक सरफेस आ बन गया, एक सरफेस दा परले पासे दा होएगा, दो ते तीजा सरफेस दा पूरा पूरा सारा कर्व्ड सरफेस, ठीक है। हुण देखिया जाए उन्हां सब केसिस दे वास्ते की कीता जाऊगा, किदां पढ़ रहे पे आपां। जे आ कर्व्ड सरफेस है, सो इस कर्व्ड सरफेस का भी जिहड़ा एरिया वेक्टर होएगा किधर होएगा, इस तो बाहर नूं, इस तो बाहर नूं किसी भी पासे नूं ले लो, इहदा एरिया वेक्टर इथों बाहर नूं होएगा। सो इहदा वेक्टर आपां काउंट करदे हां, इहदा वेक्टर ए है, एन कैप दस रहा दी डायरेक्शन, ठीक है, पूरा पूरे सरफेस वास्ते, ठीक है। इस सरफेस नूं मैं काउंट करदा पिया वां, इस सारे सरफेस नूं मैं पूरे सरफेस दा एक पार्ट ले लिया, जिहनूं मैं कह दवांगा ds1, ठीक है। आ वाला सरफेस इहदा एक मैं छोटा जिहा पार्ट लवांगा कोई, ठीक है, छोटा जिहा पार्ट इथों मैं लेके चले हां, इहदे विच इसदा भी छोटा जिहा पार्ट लवांगा। हुण इहदा बाहरला पासा इधर नूं होएगा, सो आ बाहरला पासा आया, छोटा जिहा पार्ट लिया, ओनूं मैं की ले लिया ds2, डायरेक्शन इहदी इस पासे नूं, बाहरला पासा इधर नूं, तीसरा पासा मैं छोटा सरफेस आ ले लिया ds3, डायरेक्शन इस पासे नूं, यही है एन कैप। चीज़ा क्लीयर है, इथों ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਫਲਕਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। कि जब तक ये बेस चीज़ा क्लीयर नहीं होंदियां, इत्थों तक बेस खत्म हो जाना, इस तो बाद एप्लीकेशन शुरू हो जानी है। तो जब तक ये चीज़ा नहीं ना आपां नूं समझ लगियां तो एप्लीकेशन में आपां नूं बहुत प्रॉब्लम होनी है। और जो न्यूमेरिकल्स होणगे तो उदों तक भाई तुसीं सिर पढ़ के बैठ जाओगे। तो ध्यान रखो इस चीज़ दे नाल कि क्या की जा रहा है। हुण देखो पहला सरफेस आया, सो मैं इसकी फ्लक्स लिखा, मैं इसकी फ्लक्स मिल लवां φ1, इसकी फ्लक्स कह रहे हैं आपां φ2, तो जो इधर निकल के जाती होगी उन्होंने कह रहे फ्लक्स φ3। सो φ1 की आई, φ1 मींस थोड़े सरफेस वास्ते, सो d φ1 लिख दिया मैं। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही जी इस पासे नूं, सरफेस एरिया इस पासे नूं आ, सो दोवां दे विचकार एंगल कितना बनदा पिया, जल्दी नाल बोल दो जी। इलैक्ट्रिक फील्ड सारी यूनिफॉर्म है, इलैक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जा रही है, सो ई हुई, और ये जी इलैक्ट्रिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म है, लगातार बढ़ती जा रही है, सॉरी लगातार यूनिफॉर्म है, मींस इत्थे भी उन्नी है इधर भी उन्नी है, ठीक है ना। जो सरफेस चार्ज और ये भी एक तरह की असम्पशन ही आपको लेके चलनी पै रही है लगातार। अगर कंडीशन दे विच इन्नी चीज गिवन हो करूगी कि इलैक्ट्रिक फील्ड जी बढ़ती जा रही है, दैन सानू किसी होर थिंग ना सोचना पैना। बट आप इत्थे जो पढ़ते पे वो चीज की पढ़ते पे कि इलैक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म है, जिवें पिछले वाले केस दे विच भी क्वेश्चन सरफेस दे विच आपां सेंटर च काउंट करते सी ना, इत्थे काउंट करते सी आपां चार्ज, और वो इन्नी गल बोलदा कहंदा चार्ज क्लोज सरफेस दे विच किते भी हो सकदा है। सो तो मतलब कितने भी हो सकता है, तो फिर उस विच भी आपको असम्पशन यही मान के चलनी पैनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड की है यूनिफॉर्म है पूरी। क्यों? क्योंकि जो आप पूरे पूरे सरफेस वास्ते लिखांगे, अगर सेंटर च पिया होएगा उस वास्ते तो इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड होनी, इत्थे भी होनी, इत्थे भी होनी ते इत्थे भी होनी, वो तो ठीक है। बट अगर किसी होर जगह के ऊपर चार्ज किसी होर भी पिया हो सकता है, इत्थे दा मतलब की है कि जे वेरिया का केस होगा तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होर होनी है, क्योंकि डिस्टेंस घट है, तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होर होनी है, डिस्टेंस इन्ना रूप तो वध है। सो आप एक चीज मान के चलते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड जी यूनिफॉर्म ही रह रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। सो इलैक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म की कह रहे हैं, अगर बेटा नई यूनिफॉर्म गिवन हो करेगी फिर वक्त केस लौड़ा करना है, वो ध्यान के समझना, क्वेश्चन पढ़ना करना। इलैक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जा रही है, सो इस सरफेस के ऊपर φ1 के ऊपर क्या आएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड नाल सरफेस वेक्टर, इलैक्ट्रिक फील्ड नाल सरफेस वेक्टर,
ds2 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ x ਕੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, x ਪॉजिटिव x वाले पासे। सो x कैप आ गया, आशे को हटाता हूं, डॉट ds2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਈ ਇਹ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, x ਕੈਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, n ਕੈਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ x कैप ਤੇ n कैप, ये दोनों ने x कैप है ਤੇ n कैप है। सो x ਤੇ n दोनों विचकार एंगल कितना बेटा 180 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड दोवां दा कितना है, यूनिट वेक्टर ने 1 1 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ हो गया cos 180 डिग्री। सो cos 180 की वैल्यू बोल दो भाई जल्दी जल्दी कितनी हो रही है, -1 होती है। सो की आ गया e ds2। ये आ गई साडी कोल फ्लक्स एने के सरफेस दी, ठीक है। सो एने के सरफेस दी फ्लक्स आ गई, सानू पता है। और इधरले पासे दा की होएगा, इस पासे दी गल करिए तो ओदे की आउगी d∅2, कुछ भी की होएगा सेम, दोनों एक ही पासे में जा रहे हैं। x और n दोनों एक ही पासे में है, क्योंकि n वैसे पासे में x वैसे पासे में। e ds3 x की वैल्यू भी 1 होगी, मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर का, ते नाल cos कितना आ गया जी 0 डिग्री। सो की आ गया e, और इथे s भी होना है, ds3 है, ठीक है बेटा। ds3 है, सो की आ गया ds3 की आ गई। सानू पता सिलेंडर की शेप है, आ पूरा पूरा एरिया भी उतना ही होएगा, ते आ पूरा पूरा एरिया भी उतना ही होएगा, ठीक है। सो मैं आ वाला एरिया भी उतना ही है। जे मैं पूरी वास्ते फ्लक्स काउंट करा पूरे एरिया की, तो जिनी होएगी वो की होएगी, पूरा पूरा एरिया उतना ही है। ये सारा एरिया मान लिया गया ए, क्योंकि एरिया उतना ही रहेगा ना, सिलेंडर इधर पासा भी उन्हें, उधर पासा भी उन्हें, सो मान एरिया ए लिख लिया क्योंकि कुछ नहीं है। सो इधर पासे d∅2 भी की होएगा P नाल एरिया लिख लिया, ए नेगेटिव और पॉजिटिव। तीसरे सरफेस पे आप देखांगे तो की आएगा साडे कोल, इथे देखो जल्दी इनु थर्ड सरफेस वास्ते एक आपने को बनया n वेक्टर इस पासे में, x इस पासे में है, वेक्टर्स हो गए, इकट्ठा किया e ds3 डायरेक्शन x कैप ते नाल n कैप, e ds3 दोवां दा मैग्नीट्यूड 1 1, दोवां दा एंगल कितना है, x इस पासे नु जा रहा है, n तीजे सरफेस ऊपर नु जा रहा है, दोवां दा एंगल कितना बढ़िया 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री वैल्यू 0, इसका मतलब इतने फ्लक्स की होगी 0। सारी फ्लक्स काउंट कर ली, क्या सी ना कि पूरी क्लोज सरफेस जो फ्लक्स कितनी काउंट हो रही है वो फाइंड करनी है आपां, क्योंकि गॉस थ्योरम इंप्लीमेंट कितने होती है किसी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, उसनु गॉसियन सरफेस बोलते हैं आपां, जेड़ा क्लोज नेचर दा हुंदा। सो टोटल फ्लक्स की आ गई जी, इधरले पासे दी फ्लक्स वो की है -E है, दूसरे वाले पासे दी फ्लक्स EA, तीसरी इधरले पासे दी फ्लक्स जो कि 0 सी, अब इको जिन्ने होए वो पहले 0 है। सो टोटल फ्लक्स साडे कोल कितनी आ गई, समझ लगी बेटा जी, चीज का ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी नाल, कूलम ला करना इस तो बाद आप। नेक्स्ट है बेटा अपने कोल कूलम्स लॉ। इतना हो गया बेटा कि कूलम्स लॉ,
इस भी आप ड्राइव करना किस तो गॉस थ्योरम तो। सो अपने को इत्थे की आएगा हुण कूलम्स लॉ। की किया जाए गॉस थ्योरम है खुद ही निकल बोलता है क्लोज सरफेस तो बगैर मैनू हाथ भी ना लाओ। सो आपां की करना पैना क्लोज सरफेस लेना पैना। क्लोज सरफेस लिया ये सेंटर से मान लिया चार्ज पे क्यू आ छोटा एक सरफेस लिया जिन्होंने मैं कह दूंगा ds इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो पॉजिटिव तो बाहर नहीं जाती होगी इस वाले पास आ इलैक्ट्रिक फील्ड जा रही है आओ सरफेस है छोटा जा आर वेक्टर कितने बराबर आर इंटू आर कैप जी आ ds है ਇਹਦਾ एरिया वेक्टर बाहर वाले पास होएगा। सो ds सी कितने बराबर होएगा ds के नाल n कैप दे। सो r दी जेडे पास e जा रहा उधर पास r जा रहा। सो r e डायरेक्शन सेम है। सो e जो इलैक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सानू कौन देगा ये वाला r कैप। मैं इस पॉइंट पे काउंट करना क्योंकि कूलम्स लॉ फाइंड करना। सो कूलम्स लॉ दा फाइंड करना मतलब की है कि सानू पता इलैक्ट्रिक फील्ड कदों आएगी जदों दूसरे वाला चार्ज की होगा पॉइंट चार्ज। ठीक है ना जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड वाली दिशा ते आई हुंदा ना बेटा आ की सी सोर्स चार्ज। ठीक है ना ये सोर्स चार्ज है सेंटर वाला ते जिहदे ऊपर लगदा हुंदा टेस्ट चार्ज। सो दी वैल्यू 1 हुंदी है इत्थे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सो दा मतलब इत्थे जेड़ा भी चार्ज रखा जाऊगा अगर मैं उसनु कह लवां कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू qt दी वैल्यू हैगी 1। ठीक है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे पिया है इस जगह। सो आर विच कार पहला काउंट किया जाऊगा पूरे तरीके से नाल। सो आप फाइंड करिए हुणे चीजां होंदी रहेंगी पॉजिटिव चार्ज है सो लगातार इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाउंदा जाएगा। देखिए काउंट कितना हो रहा है कितों फाइंड करना आप गॉस थ्योरम तो कूलम्स लॉ ड्राइव करना है। सो गॉस थ्योरम की बोलती है जल्दी नाल भाई इलैक्ट्रिक फील्ड नाल सरफेस इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज नु आ गॉस थ्योरम है ये है जी साडे को ये वाली गॉस थ्योरम। इस गॉस थ्योरम तो चलना आप आगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ तो स्टार्ट करते हैं जे तो पहला आप छोटा सरफेस लिया आ दो दे विचकार डॉट प्रोडक्ट है छोटा सरफेस आप केड़ा ds है दोवां दे विचकार एंगल है कोई नहीं है क्योंकि जेडे पासे नु n वेक्टर है उसे पासे नु r वेक्टर है। सो एदा r वेक्टर ते एदा n वेक्टर e ds r वेक्टर ते नाल n वेक्टर e ds दोवां दे एंगल मैग्नीट्यूड 1 1 दोहां दा एंगल 0 डिग्री वैल्यू है 1 e ds इनर आ गया साडे कोल ये कितने बराबर आया इसी चीज जो आप इसमें फाइंड करते जा रहे हैं जो फ्लक्स तो चीज चली सी थोड़ी फ्लक्स की कर ठीक है वो साडे कोई चीज निकल जाती है। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थों चीज चलती तक पहुंच चुकी है ते इस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਸ ਦੇ। ठीक है इलैक्ट्रिक फील्ड फिर की होएगी इस तो चलते फिर आप आगे इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की है ये वाला फार्मूला बनाना है आप इसको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी आ ds चला गया नीचे तो की आया ds सरफेस एरिया किस दा स्फीयर दा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। केड़ा बच्चा जिसनु अजे भी नहीं समझ लगी ये चीज कितना आई सारी चीज वो वाली बन के पूरी तैयार हो गई है बेटा इथे
1/4 ਚਾਰਜ Q upon r ਸਕੁਅਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ QT, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ QT ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ E ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ QE = ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 ਵੈਲਿਊ ਹੈ तो जे इस दी वैल्यू 1 है तो मैंने QT ही फिल करना है तो मैं QT ही तो फिल कर दीए। फॉर्मूला फिर फोर्स फिल फाइंड करना आपा। सो इस तो बाद देखो की आ रहा है सानू पता फोर्स किदे बराबर है Q * E दे। Q किहड़ा आ टेस्ट चार्ज आ। पढ़दे सी ना आपा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किदे बराबर होंदा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो फोर्स की आ गया Q * ET। Q * ET E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1/4 Q ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸੋਰਸ ਆ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਅਪਨ r ਸਕੁਅਰ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕੂਲਮਸ ਲਾ। ਸੋ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਐਪਸਿਲਨ ਅਪਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨਾਟ। ਸੋ ਐਪਸਿਲਨ ਮੀਨਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ E ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਪਸਿਲਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਪਸਿਲਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ KE0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ K ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ फोर्स। उम्मीद है बेटा थोड़ा अज का साडा जिहड़ा लैक्चर सी ये पसंद आया होगा। जिन्ने भी साडे कोल टॉपिक सी असीं पूरी तरीके नाल कंप्लीट कर लए ने। अपने एंड तो बेटा जिन्ना हो सकदा सी बैटर तरीके दे नाल आसान तरीके दे नाल थोड़ी अपनी भाषा दे विच, क्योंकि जो चीज़ सीखण दा मजा वो अपनी भाषा विच जिन्ना वधिया आउंदा अच्छे तरीके नाल आउंदा वो सानूं उदां नहीं आ सकदा। ठीक है। सो साडे को सब चीज़ां आके तैयार है बाकी पूरी तैयार है किद्दां वर्किंग करनी सी किद्दां फाइंड करना सी सब चीज़ां आपां कर लईआं पूरीआं। ते तुसीं इसदा स्क्रीनशॉट लै लो और एक बार जांदे जांदे फिर बच्चा एंड पार्टी वीडियोस नूं लाइक भी करो शेयर भी करो सबसक्राइब भी करो इस चैनल नूं, क्योंकि तुहाडे नाल ही असीं हां। अगर तुहानूं साडी ये जो मेहनत की जा रही है ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10th ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਦਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ।